So these are the solutions for maths section for All India Sainik School Entrance Exam 2024 for 8th standard. Exam was conducted on 28 Jan 2024. Let's look at the first question. If the area of a circle is 2464 centimeter square, then radius of the circle is. क्या होता है area of circle? Area of circle is pi r square, which is 2464. So 22 by 7 into r square is 2464. So r square is 2464 into 7 upon 22. 11 twos are 22, 26. 11 ones are 22, 44, 214, 2107. ओके, एक बार फिर से डिवाइड करते हैं. 2464 divided by 11. 11 twos are 22, 26. 11 twos are 22, sorry 224. तो ये बनेगा 112. ओके, 2 इंटू 112, तो ये बनेगा 112 इंटू 7. 112 डिवाइडेड बाय 7 कितना है? 7 1s are 7. 7 इंटू 16 इंटू 7, ये आर स्क्वायर हो गया. तो आर क्या होगा? इसका स्क्वायर रूट, which is 7 into 4, 28. Then what is the radius of the circle? Answer is 28. Next, the given line graph shows the number of articles sold by a company in the first 8 weeks of a particular year. What is the average of the number of articles sold in 8 weeks? तो ऐड करना है, ठीक है. पहले वीक में कितने बेचे उसने? 4000. दूसरे वीक में, वीक 2 5000, वीक 3 4500, वीक 4 3500, वीक 5 4000, वीक 6 4000, वीक 7 4500 एंड वीक 8 5500. तो इन सबको ऐड करना है. तो 0 0 5 plus 5 10 15 20, 7 plus 4 11 plus 4 15 plus 4 19 plus 3 22 plus 4 26 plus 9 35. तो एवरेज निकालना है. तो एवरेज इज 35,000 डिवाइड बाय 8. तो इसको हम ऐसे करते हैं, 35 इंटू 1000 अपॉन 8. 8 1 जा 8 125 जा. तो मुझे निकालना है बस 125 इंटू 35. 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 12, 5 1 जा 5 6, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6 7, 3 1 जा 3, 5 7 34. ये है आंसर 4375. If A is root 2 plus 1, B is root 3 minus root 2 and C is root 6 plus 2 root 2, then the value of A square plus B square minus C. A square क्या होगा? root 2 plus 1 का स्क्वायर. तो इस पे लगाते हैं हम A plus B the whole square, which is A square plus 2AB plus B square. तो A square बन गया मेरा 3 plus 2 root 2. B square निकालते हैं. B square is root 3 minus root 2 the whole square, which is A square minus 2AB plus B square. तो 3 plus 2 5 minus 2 root 6.
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी होगा 3 प्लस 2√2 प्लस 5 माइनस 2√6 माइनस √6 प्लस 2√2। तो ये बन गया 3 प्लस 5 8 8 प्लस 2√2 माइनस 2√6 माइनस √6 माइनस 2√2। तो 8 minus 3√6. This is the answer. Next, 2.5a minus 3.5b the whole square minus 3.5 minus 2.5b the whole square. इसको लगाते हैं हम फॉर्मूला p square minus q square which is p plus q into p minus q. ये है मेरा p, ये है मेरा q. तो p plus q निकालते हैं पहले. 2.5a minus 3.5b plus 3.5a minus 2.5b into 2.5a minus 3.5b minus 3.5a plus 2.5b. तो ये बना 6a minus 3.5 minus 2.5 minus 6b into 2.5 minus 3.5 minus a minus 3.5 plus 2.5 minus b. तो ये बना 6 into a minus b into minus 1 into a plus b, which is minus 6 into a minus b into a plus b, which is minus 6 into a square minus b square, which is minus 6a square plus 6b square, which is 6b square minus 6a square. This is the answer. If 30% of a plus b, 30 into 1 by 100 into a plus b is equal to 50% of a minus b, then a is to b. a और b का रेशियो निकालना है. So I get 30 into bracket a plus b is 50 into bracket a minus b. ये 0 0 गया. So I get 3 into a plus b is 5 into a minus b. So 3a plus 3b is 5a minus 5b. तो 3a को यहाँ लेके जाता हूँ तो ये बनेगा 5a माइनस 3a और 5b को लेफ्ट में लेके जा रहा हूँ तो 3b प्लस 5b is 8b which is 2a. So a is equal to 4b. So a upon b is 4 upon 1. Answer is 4:1. बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. ये देखो, ये 1 2 3 4 5 5 ब्रैकेट का प्रोडक्ट है. पहले इन दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट लेते हैं. इस पे लगाते हैं हम p प्लस क्यू इंटू p माइनस क्यू विच इज p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर. तो दिस इज a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन a स्क्वायर. अभी ये तो लास्ट के दो ब्रैकेट्स उड़ गए. अभी इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं, उसमें वही लगाते हैं p प्लस क्यू p माइनस क्यू. तो दिस इज a स्क्वायर द होल स्क्वायर minus 1 upon a square the whole square which is a raised to 4 minus 1 upon a raised to 4. ठीक है. अभी
इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं, उसमें भी वही लगाते हैं। तो दिस बिकम्स a raised to 4 the whole square minus 1 upon a raised to 4 the whole square, which is a raised to 8 minus 1 upon a raised to 8. अभी इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, so this becomes a raised to 8 the whole square minus 1 upon a raised to 8 the whole square, which is a raised to 16 minus 1 upon a raised to 16, but that is equal to a raised to b minus 1 upon a raised to b, so b is equal to 16. This is the answer. In a fruit store there are these many boxes, and in each box there are these many apples. How many apples are there in the store? तो apples कितने हैं? Apples का quantity is number of boxes multiplied by number of apples in a box. Okay, so which is 4 into a square minus 2b square upon 3 into 3 by 4 a square plus 3b square. अभी इस ब्रैकेट में मैं लगा रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, so this is 4 into a square minus 2b square upon 3 into 3 into a square by 4 plus b square, और अभी मल्टीप्लाई करना है. ओके, so this is 4 3s are 12 into bracket a square into a square by 4 plus b square minus 2b square upon 3 into a square by 4 plus b square. So this is equal to 12 into a raised to 4 upon 4 plus a square b square minus 2b square upon 3 into a square upon 4 plus 2b square upon 3 into b square. तो ये बना 12 into a raised to 4 upon 4 plus a square b square minus a square b square upon 6 plus 2 by 3 b raised to 4. तो ये a square b square minus a square b square upon 6 होगा, तो इसको मैं क्या करता हूँ, लाइक फ्रैक्शन बना देता हूँ. तो ये बना 6 upon 6, तो इसलिए ये बना 5 a square b square upon 6. अभी सबको 12 से मल्टीप्लाई करना है, तो जब मैं 12 से मल्टीप्लाई करूंगा इसको, तो मुझे मिलेगा 3a to the power 4 प्लस 12 से मल्टीप्लाई करूंगा इसको, तो 6 2 ज़ा 12 10 a square b square. 12 से मल्टीप्लाई करूंगा इसको, 3 4 ज़ा 12 4 2 ज़ा 8 b raised to 4. देखते हैं आंसर है क्या. 3a raised to 4 प्लस 10 a square b square माइनस, अच्छा तो ये माइनस साइन था, ये मिस्टेक हो गया, तो ये माइनस रहेगा. ठीक है, माइनस 8b raised to 4. दिस इज द आंसर. इफ x इज 4ab अपॉन a प्लस b, x का वैल्यू क्या है 4ab अपॉन a प्लस b, तो x प्लस 2a अपॉन x माइनस 2a plus x plus 2b upon x minus 2b is, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मुझे चाहिए x plus 2a upon x minus 2a. so what is x plus 2a?
it is 4ab upon a plus b plus 2a, which is 4ab plus 2a into a plus b upon a plus b, which is 4ab plus 2a square plus 2ab upon a plus b, which is 6ab plus 2a square upon a plus b. Okay, what is x minus 2a? It is 4ab upon a plus b minus 2a, which is 4ab minus 2a into a plus b upon a plus b, which is 4ab minus 2a square minus 2ab upon a plus b. So which is equal to 2ab minus 2a square upon a plus b. Okay. So what is x plus 2a upon x minus 2a? It is, जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो इनका डिनोमिनेटर कट जाएगा, so this becomes 6ab plus 2a square upon 2ab minus 2a square. Similarly, what is x plus 2b? x plus 2b, x क्या है? 4ab upon a plus b plus 2b, which is 4ab plus 2b into a plus b upon a plus b, which is 4ab plus 2ab plus 2b square upon a plus b, which is 6ab plus 2b square upon a plus b. And then I have x minus 2b, which is 4ab upon a plus b minus 2b, which is 4ab minus 2b into a plus b upon a plus b, which is 4ab minus 2ab minus 2b square upon a plus b. So what is x plus 2b upon x minus 2b? जब इसको और इसको डिवाइड करेंगे तो इसका डिनोमिनेटर कट जाएगा, so this is 6ab plus 2b square upon 4ab minus 2ab, 2ab minus 2b square. So this plus, what do you get over here? 6ab plus 2b square, 6ab plus 2b square upon 2ab minus 2b square, 2ab minus 2b square. तो इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये बना 3ab प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए बी माइनस ए स्क्वायर, और इसमें भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड करते हैं, तो 3ab प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी माइनस बी स्क्वायर. इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को a से डिवाइड करते हैं, तो ये बना 3b प्लस ए अपॉन बी माइनस ए, प्लस इस पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को b से डिवाइड करते हैं, तो 3a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, तो भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो दिस इज 3b प्लस ए
into a minus b plus 3a plus b into b minus a divided by b minus a into a minus b. So this is 3b into a, 3ab minus 3b square plus a square minus ab plus 3ab minus 3a square plus b square minus ab divided by b minus a into minus 1 into b minus a. तो ये 3ab और 3ab दो बार आया, 6ab हो गया, माइनस ए बी माइनस 2ab, तो ये बना 4ab माइनस 3b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज माइनस 2b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर is minus 2a square divided by minus 1 into b minus a the whole square. तो ये बना minus 1 into 2a square minus 4ab plus 2b square upon minus 1 into b minus a the whole square लो या a minus b the whole square लो. Okay, it is the same thing. Minus 1 into a minus b the whole square. तो यहाँ पे माइनस 1 गया, ऊपर से 2 गया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर विच इज a माइनस बी द होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर भी है a माइनस बी द होल स्क्वायर. तो आंसर इज 2. बहुत खतरनाक क्वेश्चन था ये. इफ 8 इज मल्टीप्लाइड विथ 7 मोर देन अ नंबर लेते हैं, 8 is multiplied with 7 more than a number, it becomes the same as 15 is added to 3 times the same number. 15 is added to 3 times the same number. Okay, this can be represented by which of the following equations? तो ये इक्वेशन होगा ना, n की जगह x लिया इसने, 15 plus 3x, 8 into 7 plus x. This is the answer. Let's look at this question. 44 into this divided by 11x into x minus 8. तो इसको ऐसे लिखते हैं, 44 इंटू एक्स स्क्वायर, तीनों टर्म्स में एक्स स्क्वायर कॉमन है, फैक्टराइज कर दिया मैंने. तो ये बना एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 डिवाइडेड बाय 11x इंटू एक्स माइनस 8. 11 4 जा, एक्स एक्स गया तो 4x बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24, ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3x माइनस 24 डिवाइड बाय x माइनस 8. तो दिस इज इक्वल टू 4x. देखो 4x का एक ही फैक्टर है, एक ही आंसर है, ये आंसर होना चाहिए. लेट्स सी, वेरीफाई करते हैं. x इंटू एक्स माइनस 8 प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 8 upon x minus 8. So this becomes 4x into x minus 8 into x plus 3 upon x minus 8. This is 4x into x minus x plus 3. This is the answer. Okay. In a polygon, sum of interior angles is 360. The polygon diagonals are equal, बट नॉट ऑल द साइड्स. डायगोनल्स इक्वल कहाँ पे होते हैं? रेक्टेंगल में. ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल. ओके, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, सो इट हैज टू बी अ रेक्टेंगल बिकॉज डायगोनल्स आर इक्वल. देखो पैरेललोग्राम में डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, रोम्बस में डायगोनल्स इक्वल नहीं होते,
स्क्वायर में डायगोनल्स इक्वल होते हैं लेकिन सारे साइड्स भी इक्वल होते हैं। 12 सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 88। क्या होता है सर्कमफ्रेंस? 2 पाई r, 2 into 22/7 into r, that is 88. So r is 88 into 7 upon 2 into 22. 22 4s are 2 2s are 7 2s are 14. रेडियस आ गया 14 सेंटीमीटर। व्हाट इज एरिया ऑफ द सर्कल? एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, विच इज 22/7 into 14 into 14. 7 2s are, so this is 22 into 28. तो ये 6 में एंड होने वाला आंसर चाहिए, वो केवल ये आंसर है, इसलिए दिस इज द आंसर। वेरीफाई कर लेते हैं। 28 into 22, 8 2s are 16, 2 2s are 4 5, 8 2s are 16, 2 2s are 4 5, 6 1 6. Numbers 1 to 40 are written on different cards and kept in a box. One card is picked up from the box. What is the provided the card shows a perfect square? 1 to 40 में perfect square कितने हैं? एक तो 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25, 36, कितने में? 3 और 3 6, 6 out of 40, 3/20. This is the answer. Okay. 6 identical pipes can fill a tank in 1 hour 30 minutes. तो पाइप्स कितने हैं? 6. तो कितना टाइम लगता है उनको फिल करने के लिए? 90 मिनट्स। तो एक पाइप को कितना टाइम, आइडेंटिकल पाइप से, तो एक पाइप को कितना टाइम लगेगा? 90/6, 15 मिनट्स। ओके। 3, तो एक मिनट में एक पाइप कितना टैंक भरेगा? 1/15 ऑफ द टैंक। एक पाइप एक मिनट में 1/15 ऑफ द टैंक भरेगा। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द टैंक इफ 3 pipes stop working after filling half the tank? ओके। तो आधा टैंक भरा हुआ है, हाफ टैंक इज फुल। ठीक है, तो इन्होंने 45 मिनट्स टाइम ले लिया ऑलरेडी। ओके। अभी जो बचे हुए 3 पाइप है, 3 pipes in 1 minute can fill 3 into 1/15 of the tank, मतलब 1/5 of the tank। ठीक है, तो कितने मिनट लगेंगे उनको आधा टैंक भरने के लिए? सो क्वेश्चन मार्क इज 1 into half divided by 1/5। तो इस क्वेश्चन का लॉजिक थोड़ा फेल हो गया, ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट चलेगा नहीं इस क्वेश्चन में। देखो 6 pipes टेक 90 मिनट्स टू फिल द टैंक। तो ये टैंक फिलिंग का काम कितना है? 6 into 9 पाइप मिनट्स का, ये मैंडेज का क्वेश्चन है। तो 3 पाइप को कितना टाइम लगेगा? 3 पाइप को सपोज टाइम t लग रहा है, तो 3 into t, ये दोनों नंबर सेम है,
ठीक है, तो 3 इंटू टी इज 6 इंटू 90, so t is 6 into 90 upon 3. 3 ones are 3 twos are. This is 180 minutes. Okay, अच्छा, अभी 3 पाइप्स को फुल टैंक भरने के लिए 180 मिनट्स लग रहे हैं, तो 3 पाइप्स को हाफ टैंक भरने के लिए 90 मिनट्स लगेंगे. ओके, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द टैंक इफ 3 पाइप्स स्टॉप वर्किंग आफ्टर फिलिंग हाफ ऑफ द टैंक. तो आधा टैंक भरा, तो 90 में से आधा टाइम 45 मिनट्स यूटिलाइज हो गए. बचे हुए 3 पाइप और 90 मिनट्स लगाएंगे, तो टोटल टाइम लगेगा 135. Now, a certain number of men can complete a work in 50 days. Suppose number of men 50 days में काम खत्म कर रहे हैं. तो ये मैंडेज कितने कितने काम का मैंडेज वर्क इज ऑफ m into 50 man days. If there were 6 men more, the work can be finished in 10 days less. तो ये भी सेम वर्क है, m plus 6 into 40. ये दोनों को इक्वेट करना है. तो m into 50 is m plus 6 into 40. तो 0 0 चला गया, तो 4m plus 24 is 5m. ठीक है, तो 4m को लेफ्ट में लेते हैं, तो m is 24. Number of men originally working are 24. In one angle, if one angle of a triangle is 60 degree and remaining two angles are in the ratio 1:2, तो जो बचे हुए एंगल है वो है x और 2x plus 63 is 180. तो 3x is 180 minus 63, which is 117. So x is 117 upon 3. 3 3s are 9, 3 9s are 27. तो 2x है मेरा 78. So the largest angle of the triangle is 78 degrees. If a is to b is to c is to d is 1 is to 2 is to 3 is to 5. तो a अगर मेरा k है तो b है 2k, c है 3k और d है 5k. तो इनको चाहिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर. तो के स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस 4 प्लस 9 14 अपॉन के स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, 9 प्लस 4 13 प्लस 25 38. तो 7/19. This is the answer. Atul drives a car at a speed of 48 kilometers per hour and starts his journey from his hometown 132 kilometers away from residence at 9 a.m. At what time will he reach his hometown? तो उसको डिस्टेंस ट्रैवल करना है 132 किलोमीटर्स at the speed of 48 kilometers per hour. Speed is equal to distance upon time. So time is 132 upon 48 hours. तो ये करते हैं हम मिनट्स में कन्वर्ट इंटू 60. 12 4s are 12 5s are 4 3s are 12, 4 3s are 12, तो 5 3s are 15, 5 3s are 15, 165. तो इसको लग रहे हैं 165 मिनट. ओके, 165 मिनट में है, एक्सक्यूज मी, 120 प्लस 45 है, तो ये 120 हो गए 2 आवर्स और 2 hours 45 मिनट्स. तो 9 बजे निकला तो इतने बजे पहुंचा.
if the points a3, 0 and b0, 4, 3, 0 कहाँ लाई करेगा, ये होगा मेरा a, 3, 0 और ये हो गया मेरा b, 0, 4 आर जॉइंट, इन दोनों को ज्वाइन कर लिया. Then what will be the area of the triangle formed by EB and the coordinate axis? So this is 3 and this is 4. The area of triangle will be half into base into height. 4 3s are 12 by 2, 6 units square. In a polyhedron, V stands for number of vertices, F for number of faces, and E stands for edges. Then which of the following cannot be true for a polyhedron? F plus V is E plus 2. यह है ट्रू के लिए केस. तो पहले केस में F प्लस वी कितना है, 8 प्लस 6 14 और E प्लस 2 कितना है 14, तो ये ट्रू है. सेकेंड केस में F प्लस वी कितना है 10 और 8 प्लस 2 10, ये भी ट्रू है. थर्ड केस में F प्लस वी कितना है 11, E प्लस 2 कितना है 12, दिस इज रॉन्ग. फोर्थ केस में F प्लस वी कितना है 8, E प्लस 2 कितना है 8, दिस इज ट्रू. आंसर इज 3. All the faces of a cube of side 5 centimeters are red painted. बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये. इसका सॉल्यूशन बहुत ज़बरदस्त है. देखो, एक क्यूब है, जिसका साइड है 5 सेंटीमीटर्स, are red painted and is cut into smaller cubes of side 1 centimeter. तो 1 सेंटीमीटर के क्यूब्स बनाए. पूछा क्या है, व्हाट इज टोटल वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब्स फॉर्म्ड विच हैव नो फेस विथ रेड कलर. मतलब जो भी बाउंड्री वाले हैं क्यूब्स, जो भी बाउंड्री वाले क्यूब्स है वो अपने को हटाना है. मतलब ये 1 सेंटीमीटर वाला जो क्यूब है ऐसे वाला हटेगा तो अंदर एक क्यूब बचेगा ऐसे, जिसका साइड होगा 3 by 3 क्योंकि यहां से 1 सेंटीमीटर निकलेगा, यहां से एक निकलेगा, यहां से एक, राइट. तो ऐसे 1 सेंटीमीटर हर एज से निकलेंगे. ठीक है, तो हर एज से 2 सेंटीमीटर निकलेगा, लेफ्ट से एक, राइट से एक, तो बीच में बचेगा 3 सेंटीमीटर का क्यूब. तो उसके कोई भी फेसेस रेड पेंटेड नहीं होंगे. ओके, क्यों, ऊपर से भी तो 3 एक एक जाएगा, तो ये सेंटर में रहेगा. ओके, तो उसका एरिया होगा, उसका सॉरी उसका वॉल्यूम होगा 3 इंटू 3 इंटू 3 27 सेंटीमीटर क्यूब. What is greatest value of A for which the 6-digit number 3, 2, 6, A, 5, 0 is divisible by 3? तो डिविजिबल टेस्ट ऑफ 3 क्या है, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 3. 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 6 11, 11 प्लस 5 16. तो 16 को हम अगर 2 ऐड करेंगे तो ये 18 बनेगा, डिविजिबल बाय 3. 16 को 6 ऐड करेंगे तो 22 बनेगा, नॉट डिविजिबल बाय 3. 16 को 8 ऐड करेंगे तो 24 बनेगा, डिविजिबल बाय 3. 16 को 9 ऐड करेंगे 25 बनेगा, नॉट डिविजिबल बाय 3. तो ग्रेटेस्ट नंबर पूछा है तो आंसर है 8. 7/3 प्लस 7/3 इंटू 3/14 माइनस 1/7 इंटू माइनस 49/14. ओके, डिवीजन मतलब मल्टीप्लीकेशन बाय रेसिप्रोकल. 3 गया, 7 1 जा, 7 2 जा, 7 1 जा, 7 7 जा, 7 1 जा, 7 2 जा. तो ये क्या बना, 7/3 प्लस हाफ माइनस 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 हाफ.
तो ये बना 7/3 प्लस हाफ प्लस हाफ, तो 7/3 प्लस 1 विच इज 10/3। क्यूब रूट ऑफ 27 क्या है 3 माइनस 2, क्यूब रूट ऑफ 8 क्या है 2, क्यूब रूट ऑफ 125 5। तो ये उड़ गया, इसका उसको चाहिए, सॉरी, क्यूब रूट ऑफ 27 इज 3 माइनस 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 8 क्या है 2 प्लस क्यूब रूट ऑफ 125 5। तो ये इंटू था, ये मैंने प्लस ले लिया। दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 4 प्लस 5। 3 minus 4 minus 1 plus 5 4 square root of 4, answer is 2. The average of first 5 prime numbers 2 plus 3 plus 5 plus 7 plus 11 divided by 5. This is 5 plus 5 10, 10 plus 7 17 plus 11 28 upon 5, which is 56 upon 10. Answer is 5.6. So let's look at the next question. Two cubes have the surface area in the ratio 4:9. Cube surface area of first cube upon surface area of second cube is side of first cube the whole square, 6 into side of first cube the whole square upon 6 into side of second cube the whole square, which is side 1 upon side 2 the whole square, but that is 4/9. So what is side 1 upon side 2? Square root of 4/9, which is 2/3. What is ratio of their volumes? Volume of first cube upon volume of second cube is side of first cube the whole cube upon side of second cube the whole cube, which is side 1 upon side 2 the whole cube, which is 2/3 the whole cube, which is 8 upon 27. ये है आंसर। 4 equal cuboids with dimensions 6 into 10 into 4 are joined side by side. The volume of the solid so formed. तो volume of one cuboid into 6, sorry, into 4, क्यों 4 यूज किए, तो एक क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना है 6 इंटू 10 इंटू 4, ये वॉल्यूम ऑफ वन क्यूबॉइड है इंटू 4, तो 6 4 ज़ा 24, 24 4 ज़ा 96, 96 इंटू 10 960 cubic centimeters. Ritu is 4 years younger than her brother Varun. Ritu और वरुण, प्रेजेंट एज। तो रितु का अगर हम लोग एज लेते हैं ए, तो रितु इज 4 years यंगर देन ब्रदर वरुण, तो वरुण इससे 4 साल बड़ा है। ठीक है, आफ्टर 5 years एज आफ्टर 5 years, तो इसका होगा a प्लस 5, इसका होगा a प्लस 4 प्लस 5, मतलब a प्लस 9। The sum of their ages will be 70 years. A plus 5 plus A plus 9 is 70 years. Okay. तो 2A plus 14 कितना होगा 70, तो 2A कितना होगा 56, तो A कितना होगा 28,
What is Ritu's present age? 28 years. Out of certain number of marbles, 3/5 are red. तो रेड कितने हैं? 3/5. अभी रिमेनिंग कितने हैं? 2/5. हाफ ऑफ द रिमेनिंग आर ग्रीन. तो ग्रीन कितने हैं? हाफ ऑफ रिमेनिंग मतलब हाफ ऑफ 2/5 which is 1/5. If the number of green marbles is 12, then how many are red marbles? तो ये 1/5 ऑफ टोटल कितने हैं? 12. तो 1/5 इंटू टोटल है 12. तो टोटल is 5 into 12 which is 60. तो टोटल 60 है. तो पूछा क्या है? रेड मार्बल्स. तो रेड मार्बल्स कितने हैं? 3/5 ऑफ टोटल which is 3/5 into 60. 5 12s are 12 3s are 36. How many sides does a regular polygon have if each of its interior angle is 156 degrees? एक रेगुलर पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल 156 है तो उसका एक्सटीरियर एंगल होगा 24 क्योंकि इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल बनाते हैं लीनियर पेयर. लेकिन सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स कितना होता है? सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स 360. तो अगर उसको n साइड्स है तो n इंटू 24 is 360. So n is 360 upon 24. 12 2s are 12 30s are 2 1s are 2 15s are. तो ये होगा आपका 15. In the figure L1 is parallel to L2 and angle 1 is 115. ये 115 है. ये अगर 115 है तो ये भी 115 है. क्यों? ऑल्टरनेट एंगल्स. ये भी 115 है. क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. एंड एंगल 2 इज 40. ये 40 डिग्री है. ओके. देन एंगल 3 इज इक्वल टू, अभी देखो ये अगर 115 है और ये अगर 40 है तो ये है आपका 75. क्यों? इंटीरियर एंगल सॉरी एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल्स. एक्सटीरियर एंगल of a triangle equal to sum of remote interior angles. तो ये 75 बना तो 375 के साथ लीनियर पेयर में है तो 3 बनेगा 105. ये है आपका आंसर. Survey was done on 900 school children about their choice of TV programs, sports, comedy shows, serial news. Choice are given in pie chart. How many children showed interest for comedy shows? Comedy shows कौन सा है? B. B का कितना है? 100 डिग्री. ओके. तो ये 100 अपॉन 360 इतना फ्रैक्शन हुआ. 10/36 मतलब 5/18 ऑफ टोटल. टोटल कितने? 900. सो 5/18 इंटू 900 1850 250 आंसर है आपका. ABC trapezium which AB parallel to DC, D perpendicular to AB. AB is twice DC. DC अगर x है तो AB है मेरा 2x. DE is 12 and area ABCD is 144. So what is area of trapezium? This is equal to half into sum
of parallel sides into height. Height is perpendicular distance between them. So half into x plus 2x into 12 is equal to 144. 2 6 are. So 3x into 6 is 144. So x is equal to 144 upon 18. 9 2s are, 9 16s are, 2 1s are, 2 8s are. AB का लेंथ पूछा है, AB का लेंथ 2x है, तो वो होगा 16. Which of the following statements are true? True है. Cube of any odd number is odd. True. Cube of a single digit number cannot be a single digit number. False. 2 का क्यूब 8 है. A perfect cube may end with exactly 2 zeros. False. Cube of 2 digit number has at least 3 digits. 2 digit number ले लो 10, कम से कम 3 डिजिट रहेंगे उसमें. ऐसे बोल रहा है 10 का क्यूब is 1000. Cube of a 2 digit number has at least 3 digits. No, it has at least 4 digits. 4 डिजिट चाहिए. ठीक है. Which of the following statements are true? तो इसमें A तो है ही. देखो B और C फॉल्स है. B और C फॉल्स है. B तो फॉल्स है ही. ठीक है ना. Cube of a single digit number cannot be a single digit number. It can be a single digit number. ओके. तो ये फॉल्स है. तो एटलीस्ट 3 डिजिट्स. अच्छा, एटलीस्ट 3 डिजिट्स तो 100 के ऊपर के डिजिट्स है. फाइन. तो A and D will be true. ओके. द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर. ये 60 है तो ये 120 है. ये 50 है तो ये 130 है. तो 120 प्लस 130 प्लस 40. ओके. प्लस x. ओके. तो ये क्या है? 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. तो ये पेंटागन है. n-2 into 90. So this is 3 into 90, which is 270. ओके. तो x का वैल्यू क्या होगा ये पूछ रहा है वो. So this is not 90, this is 180. तो 3 into 90 नहीं है. This is 3 into 180, which is 540. So फॉर्मूला क्या लगाया मैंने? Sum of interior angles of a polygon is equal to n-2 into 180, where n is equal to number of sides. So this is 3 into 180, which is 540. तो ये होना चाहिए 540. तो ये हो गया 250 प्लस 40 290. 290 plus 2x is 540. So 2x is 540 minus 290. 300, 240, 540 minus
250 plus T, 290, 0, 14 minus 95, 2, 2, 250. तो 2x बना 250, तो x बना 125. ये है आंसर. Madan scored marks given in the following table. Every paper was of 100 marks. His average marks per subject is. सबको ऐड करो. 95, 72, 80, 68, 65. 13 plus 2, 15 plus 5, 20. 8 plus 6, 14 plus 8, 22 plus 7, 29 plus 9, 38. 380 divided by 5. 5 7s are 35, 30, 76. This is the answer. Which of the following triangles with given side is not a right angle triangle? ये है because the Pythagorean triplet. ये है क्योंकि ये 3 4 5 का मल्टीपल है. 5 12 13 है. ओके, तो आंसर इज सी, नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल. ठीक है, तो आंसर इज 4. If two perpendicular sides of a triangle are 9 and 40 and length of the side opposite to the right angle is x, then the value of x is. तो ये 9 है, ये 40 है, ये x है. तो x square is equal to 40 square plus 9 square, which is 1600 plus 81, which is 1681. कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 41 का स्क्वायर. ठीक है, देखो 41 इंटू 41, 1681. So x is 41. This is the answer. The value of a car depreciates at 10% per annum. Jain bought the car for 8 lakhs. 8 lakhs में खरीदा उसने कार. तो फर्स्ट ईयर के बाद, आफ्टर फर्स्ट ईयर कितना डिप्रिशिएट हुआ ये? इसका 10%, मतलब इतने पैसे कम हो गए. तो ये बना 7,20,000. आफ्टर सेकेंड ईयर फिर से 10% डिक्रीज हुआ, डिप्रिशिएट. तो ये इतना हुआ, -2, 8, -7, 4, 648,000. एंड आफ्टर थर्ड ईयर फिर से 10% डिप्रिशिएट हुआ, 648,000. 0 0 10 minus 8 2 200 में एंड होने वाला ये आंसर है. यही आंसर होना चाहिए. 7 minus 4 3, 14 minus 6 8, 53200. This is the answer. The median data set. देखो ये डेटा सेट का मीडियन निकालने के लिए 3 3 6 7, पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं. तो 3 के बाद आएगा 6, उसके बाद आएगा 7, उसके बाद आएगा 8, 9, 11, 12, 3 3 6. मीडियन इज 8. The average height of 6 boys is 5 feet 3 inches. 5 feet मतलब 12 5s are 60 plus 3, 63 inches. ठीक है, 6 boys का. ओके, A plus B plus C plus D plus E plus 6th. And if one boy is 6 feet 1 inches tall, 6 feet मतलब 12 6 are 72 plus 1, 73 inches tall, upon 6 is 63. So what is A plus B plus C plus D plus E plus 73? It is 63 into 6, 6 3s are 18, 6 is 36, 378. So what is A plus B plus C plus D plus E? 378 minus 73, which is 305. अभी इनका एवरेज निकालना है. तो ये बनेगा 61 इंचेस.
61 इंचेस मतलब 60 प्लस 1 इंच, 60 इंचेस मतलब 5 फुट, 5 फुट 1 इंचेस. नेक्स्ट, by which smallest number 2700 must be multiplied so the new number is a perfect cube. तो 2700 का हम निकालते हैं प्राइम फैक्टर्स. तो दिस इज 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 10 का 2 इंटू 5 इंटू 10 का 2 इंटू 5. तो ये 3 इंटू 3 इंटू 3 है. देखो कोई भी क्यूब के नंबर का प्राइम फैक्टर्स अगर होता है तो वो ट्रिपलेट में होना चाहिए. तो यहाँ पे एक 2 मिसिंग है, यहाँ पे एक 5 मिसिंग है. तो अगर मैं 2 इंटू 5 मतलब 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये बनेगा परफेक्ट क्यूब. हाँ, द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4. तो लिख लेते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं है ये. 3 इंटू 4 इंटू 5, 2 और 5 के बीच में मल्टीप्लीकेशन एक ज़ीरो आ गया. इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10, ये 10 का और एक ज़ीरो आ गया. इंटू 11 इंटू 12 इंटू 13 इंटू 14 इंटू 15. 15 को किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे सपोज, तो एक ज़ीरो देगा वो, क्योंकि उसमें 5 का फैक्टर है. 16 17 18 19 20. तो 20 का एक ज़ीरो 10. कितने ज़ीरो है? नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ द नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 4. देखो 2 और 5 को जमा किया, मल्टीप्लाई किया, एक ज़ीरो दिया उसने. 10 ने एक ज़ीरो दिया. 15 को किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई किया, एक ज़ीरो दिया. और 20 का एक ज़ीरो. ठीक है, तो ऐसे मुझे मिले 4 ज़ीरो. द कॉस्ट ऑफ 5 kg एप्पल इज 425. Cost of 12 dozen oranges is 744. Cost of 4 kg mangoes is 480. What is total cost of 8 kg apple, 8 dozen orange and 8 kg mangoes? एप्पल के लिए 1 kg का कॉस्ट कितना होगा? 425 अपॉन 5. 5 8 सा 40, 85 बराबर. तो 8 किलो एप्पल चाहिए. तो ये बनेगा 85 इंटू 8, 8 8 सा 64, 8 5 सा 40. ये बना 640 रुपीज़. 12 डजन ऑरेंजेस के लिए करते हैं. 12 डजन ऑरेंज है तो कॉस्ट है 744. तो एक डजन ऑरेंज का कॉस्ट कितना होगा? 744 अपॉन 12, 12 6 ज़ा 72, 12 4 ज़ा सॉरी 12 6 ज़ा 72, बचा 24, 12 2 ज़ा 24. तो मुझे 8 डजन ऑरेंज चाहिए. तो 8 डजन ऑरेंज का कॉस्ट कितना होगा? 62 इंटू 8, 8 2 ज़ा 16, 8 6 ज़ा 48, 49. 4 kg मैंगोज इज 480. तो 8 kg मैंगोज का कितना होगा? इसका डबल 960. तो 6, 10 प्लस 9 19, 10 प्लस 9 19, 10 प्लस 10 20. ओके. अभी इसमें कुछ तो मिस्टेक हो गया. 5 इंटू 85, 12 डजन ऑरेंजेस, 4 kg ऑफ मैंगोज, 8 kg एप्पल, 8 डजन ऑरेंज. ये आंसर है नहीं, तो इसमें कुछ तो मिस्टेक हो गया. अभी फिर से इसको करते हैं. 5 किलो का कॉस्ट 425. तो टोटल कॉस्ट ऑफ 8 kg एप्पल, तो 8 किलो का कॉस्ट कितना? सो क्वेश्चन इज 8 इंटू 425 अपॉन 5. 5 8 सा 40, 85 इंटू 8, 8 8 सा 64, 690. ये 690 है, तो 50 रुपये से बढ़ गया ये. 6 9 प्लस 5 14, 8 5 सा 40 रुपये से बढ़ गया. सॉरी 680.
So 9 plus 4 13, 2136. This is the answer. ये मल्टीप्लिकेशन गलत हो गया था. 8 5 40, 8 8 64, 680. ये 640 जो था ये 680 है, तो 40 रुपये से अपना टोटल बढ़ गया. 2136 आंसर है. Pawan bought a second-hand TV for 4,300. He spent 500 on its repair and sold it for 5,856. तो टोटल सीपी कितना हुआ उसका? टोटल सीपी कितना हुआ? 4,300 प्लस 500, 4,800. एसपी कितना है उसका? 5,856. तो उसका प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट है 1056. बराबर. तो मुझे चाहिए प्रॉफिट परसेंट, विच इज 1056 अपॉन 4,800 इंटू 100%. ये 2 जीरो चले गए. ठीक है. 4 12 ज़ा 4 2 ज़ा 8 25 4 6 2 64. 12 2 ज़ा 24, 12 2 ज़ा 24, 22%. There are 120 students in a hostel and there is food provision for 25 days. 120 स्टूडेंट्स और फूड कितने दिन के लिए है? 25 डेज के लिए. तो कितने मैन डेज का फूड है? 120 इंटू 25 मैन डेज का स्टूडेंट डेज मैन डेज का फूड है. How long would the provisions last out if 30 more students join the group? अभी 150 स्टूडेंट्स ज्वाइन किए तो कितने दिन चलेगा? 150 इंटू डी. तो 150 इंटू डी is 120 into 25. So D is 120 into 25 upon 150. 25 ones are 25, 6 are 6 ones are 620 are 20 days. If an item is sold at 1292 after giving a discount of 15%, the mark price of the item is. तो डिस्काउंट उसने दिया 15% ऑफ मार्क प्राइस. तो जो सेलिंग प्राइस है दैट इज 85% ऑफ मार्क प्राइस, बट दैट इज हाउ मच? 1292. So 85 into 1/100 into mark price is 1292. So mark price is 1292 into 100 upon 85. 5 17s are, sorry 17 5s are. या फिर ऐसे करते हैं, इसको फिर से कैलकुलेट करते हैं. 1292 into 100 upon 85. 5 17s are, 5 20s are. 1292 को 17 से डिवाइड करते हैं. 17 into 7 119. 17 into 6 102. तो ये बना 76 into 20. 72 are 140, 62 are 12, 152, 1520 mark price. 6 kg of metal A and 24 kg of metal B are melt together to form an alloy. तो वेट ऑफ एलॉय कितना है? एलॉय वेट कितना है? 30 kg. The percentage of metal A in the alloy, 6 out of 30, 1/5 into 100%. 5 ones are 5 20s are 20%. What smallest number should be subtracted from 3142 to get a perfect square? 3142. देखो 50 का स्क्वायर जो है
वो है 2500। 55 का स्क्वायर निकालते हैं। सो 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 27, 5 5 ज़ा 25, 27, 7 + 5 12, 7 + 3 10, 3025। ठीक है। नेक्स्ट 56 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। 6 6 ज़ा 36, 6 5 ज़ा 30, 33, 5 6 ज़ा 30, 5 5 ज़ा 25, 28, 6 3 8 + 3 11, 3136। ओके, तो 56 का स्क्वायर फिर से चेक कर लेते हैं। 6 6 36, 6 5 30, 30 30, 5 6 30, 5 5 25, 28, 6 3 11, 3136। तो 3142 minus 3136 is 6. The answer is 6. ये तो बहुत ही मतलब बच्चों वाला क्वेश्चन है। इफ अल्फाबेट्स ए बी सी डी आर रिप्रेजेंट बाय द नंबर्स 1 2 3, तो जेड होगा 26, ए है 1, इसका स्क्वायर रूट ऑफ 25, आंसर इज 5। दैट टेक्स केयर ऑफ दिस पेपर। ओके, थैंक्स लॉट।